महादेव 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 इसको बंद कर दे। समय पर तुम्हारा दरेक भाईओ बहनों ने विनंती कि अपना मोबाइल फोन पर बंद कर दो अगर साइलेंट मोड पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीमज्जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 भाव भावेश्वर महादेव भगवती पीताम्बरा माता की, भगवती दुर्गा माता की, ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हरि बोल हरि बोल। नवचंडी महायज्ञ એના જ અનુષ્ઠાનના સ્વરૂપમાં દેવી ભાગવતના પ્રવચનો પણ તમને સાંભળવા મળી રહ્યા છે. યજ્ઞની સાથે પ્રવચન સત્સંગ થવું જ જોઈએ. એટલા માટે જ ભગવતીની પ્રેરણાથી જ દેવી ભાગવતના પ્રવચનના સંકલ્પનો ઉદય થયો. ડુંગરી ઉપર દેવી ભાગવત અંતર્ગત મધુ અને કૈટભ એના ઉદ્ધારની ઘટના મેં તમને સંભળાવી હતી. ઋષિઓએ પ્રશ્ન કર્યું ત્યાં મધુ અને કૈટભ બંને ભાઈઓએ ભગવતીની ઉપાસના કરી હતી. એમ આ મહામંત્રની સાધના કરી હતી. આ બીજ મંત્ર છે. જુઓ, મંત્ર તો હોય જ હોય, પણ આ મંત્રોના બીજ પણ હોય. અને બીજમાં બહુ શક્તિ હોય છે. તમે બિયારણ નાખો કે નહીં, અને જ્યારે બિયારણ નાખતા હોય તો પેલા એક બિયારણમાં જે ઝાડ ઉગશે એમાં કેટલા બિયારણ તૈયાર થશે તમને ખબર હોય કે ગણ્યા કે કોઈ દિવસે નહીં ગણ્યા? થતા તો વધારે જ હશે. એક ઝાડને એક તમારા શું કે એને દાણાને ચાવલ ચોખા તમે નાખો તો પેલા ચોખાના ઝાડમાં કેટલા આવે? 150-200. તમે થોડાક ઓછા બોલી ગયા. મેં એક વાર સુકેશમાં એક ડાયાભાઈ કરીને છોકરો હતો, બહુ મને ચાહતો. હવે તો એનું શરીર નથી રહ્યું. 40 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું. લલ્લુભાઈ કરીને એક હતા જે અમારા ગુરુજીના ડ્રાઈવર પણ હતા, સુકેશના જ. તો ત્યાં મને ફરવા લઈ જતા એ લોકો ખેતર પર. તમે પેલા દયાને પૂછ્યું કે દયા, આ એક ઝાડમાં તે ગણ્યા કે કેટલા દાણા લાગે છે? કીધું ગુરુજી ગણ્યા તો નથી, પણ હવે તમને ગણીને બતાવીશ.
કારણ કે બતાડજો ભાઈ. તો પેલા એ ગણીને મને બતાડ્યા 499. एक दाने को कितने लगे? 499. मतलब 500 गुना. एक बीज से निकला. कल्पना करो, एक बियारण, एक झाड़, एक बीज सामान्य रूपથી લૌકિક વ્યવહારમાં 500 ગુણો આપતો હોય, તો મંત્રોના જે બીજ હોય, અગર જો બીજની ઉપાસના કરવામાં આવે તો એ કેટલા ગણા ફળ તમને આપતા હશે, કલ્પના નહીં કરી શકો. ऐं ह्रीं क्लीं એ ભગવતી દુર્ગાના 3 બીજો છે. અને પ્રણવ તો બધા જ સંસારના જેટલા બી મંત્રો છે બધાનો બીજ છે. એટલે આપણે 4 બી કહી શકીએ, ઓમ એમ રીમ ક્લીમ. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઓમ એમ ઓમ ઓમ એમ ઓમ એવી રીતે જપ કરે તો 2 તો થઈ ગયા પ્રણવ, અને વચ્ચે થઈ ગયો માનું બીજ મંત્ર. અને એની ઉપાસના બંને ભાઈઓએ કરી, બહુ ઓછા ટાઈમ માટે કરી હશે. તમને કહ્યું તો હતું તે દિવસે 1000 વર્ષ. ઓછું જ ટાઈમ હોય ને 1000 વર્ષનું, ઘણું હોય ને. પણ ત્યારે ઉંમર 1 લાખ વર્ષની, એટલે એમાં 1000 વર્ષ કર્યું તો ઠીક છે, બરાબર કર્યું. પણ ઉપાસના કરીને અને એનું પરિણામ થયું, ભગવતીએ દર્શન આપ્યા અને કહ્યું કે તમારે જે ઈચ્છાઓ માંગી લો તમે. આ બંને ભાઈઓએ વિચાર કરીને કહ્યું કે માતાજી, અમે અમારી ઈચ્છાથી જ મરીશું. કોઈ અમને મારવા માટે કે તૈયાર થઈ જાય તો અમે મરવા માંગતા નથી. મરવું તો બધાને જ પડે, પણ અમે મરવા માંગતા નથી. અમે મરશું તો અમારી ઈચ્છાથી મરશું. મા તો દયાળુ પ્રસન્ન હતા, એટલે કહી દીધું કે તથાસ્તુ. તો પ્રશ્ન ઊભો થયો, અહીંયા વિષ્ણુએ કેવી રીતે મારી દીધા? જ્યારે ભગવતી પાસે લોકોએ વરદાન માંગી લીધું હતું, અમારી ઈચ્છા હશે ત્યારે જ અમે મરશું. અને તમે હમણાં કથા સંભળાવી કે એમાં વિષ્ણુએ આ બંને રાક્ષસોને મારી દીધા. તો હાઉ કેન પોસિબલ? સંભવ कैसे हुआ है? क्योंकि माताजी ने तो कह दिया था तथास्तु. तब सूत जी महाराज सुनाते हैं, આ બંને રાક્ષસો બહુ બળવાન થઈ ગયા હતા. અને બળવાન બનીને તો બ્રહ્માજી ઉપર જ આક્રમણ કરવા ગયા હતા. બ્રહ્માજી બી ગભરાઈ ગયા હતા. અહીંયા વિષ્ણુ એમની રક્ષા માટે યોગ માયાના પ્રભાવથી પ્રભાવિત હતા, પણ એની જ કૃપાથી છૂટકો થયો એટલે જાગૃત બન્યા અને યુદ્ધ કરવા માટે આવ્યા. तो ध्यान दो, इधर तो मधु और कैटव है और इधर अकेले विष्णु. अब ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? मजे की बात देखो, एक एक लड़ने को आ रहा था. पहले मधु आया तो कैटव बैठा बैठा देखता रहा कि किसकी कितनी पिटाई हो रही है. भगवान विष्णु बहुत हावी हो रहे थे, लेकिन फिर भी मधु बड़ा बलवान था. अब जब मधु थक जाता
तो मधु जाके बैठ जाता और केटरब आ जाता। मतलब वो ठुकाई करने वाले दो और ये ठोकने वाले एक, परेशान हो गए। तब शांत होकर के और विष्णु ने एक बात कही कि देखो भाई, तुम दो हो, मैं अकेला हूं। रोगी हो, थका हुआ हो, वृद्ध हो, उसके ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम्हें अभी कुछ समय के लिए शांत हो जाना चाहिए और मुझे थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमसे युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी तो आरामनी મને પણ જરૂર છે। પહેલાં બી બંને બહુ સમજુ અને કહી દીધું કાંઈ વાંધો નહીં, તમે આરામ કરો। એ બહાના હેઠળ અમે भी होशियार थे न, हमको भी आराम मिल जाएगा, कर लो आराम। अब प्रश्न खड़ा हुआ, क्यों करके विष्णु ने आराम मांगा होगा और कहा होगा कि मुझे आराम की आवश्यकता है। तब सूत एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं और कहते हैं, युद्ध के समय चिंतन करने का अवसर नहीं मिल रहा था, दांव पेच में ही जा रहा था समय। इसलिए विष्णु ने जानबूझ के विश्राम का समय ले लिया, जिससे वो ये चिंतन कर सके कि इन दोनों दुष्टों को मारूं तो कैसे मारूं। इसलिए बैठ के चिंतन करने लगे। अब जब चिंतन करने लगे तब एकाएक उनके ख्याल में आई बात, स्मरण में आया, और वो स्मरण में भी यही दोनों ले आए। ये दोनों क्या बोलते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ विष्णु, विष्णु उठो, हो गया आराम, अब युद्ध करो हमारे साथ में। सूरवीर व्यक्ति युद्ध में विजेता हो जाता है, सूरवीर व्यक्ति युद्ध में विजेता होता है। लेकिन विष्णु कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर भाग्य बलवान हो तो कमजोर व्यक्ति भी जीत जाता है। ऐसा होता है, चुनावों के अंदर तो होता ही होता है। देख लो आप, कोई 2 वोट से जीत जाता है, कोई 1 वोट से भी भाई भले 1 ही वोट से जीता, लेकिन जीता तो सही, प्रधानता तो जीत की है। भाग्य से दुर्बल व्यक्ति भी जीत सकता है। जो ही उसने भाग्य की चर्चा किया तो विष्णु विचार करने लगे कि भाग्य की बात क्यों बोला होगा मुझे। तब मुझे भगवती का स्मरण करना चाहिए। भाग्य से कौन याद आया, भगवती याद आई, और उन्होंने भगवती का स्मरण किया। तब भगवती ने आकर के कहा कि मैंने इन दोनों को वरदान दिया हुआ है और ये ऐसे मरने वाले नहीं है। तो विष्णु ने कहा, मैं इतने टाइम से परिश्रम कर रहा हूँ, मेरा व्यर्थ गया? हाँ, गया ही नहीं। तो अब क्या होगा? तो देखो, माँ रास्ता बता रही है। तो वरदान उन्होंने दिया था तो रास्ता वही बताएगी। माँ कहती है, हे देव, देखो दुर्गा शिवा है, एक बात और समझना, लक्ष्मी नहीं है। और शिवा की कितनी प्राधान्यता है आप देवी भागवत में देखिए। कहा विष्णु से, आप ऐसा कीजिएगा, उदास मत होइए, हताश मत होइए, आप वापस खड़े होइए और युद्ध कीजिए। जब आप युद्ध करेंगे तब मैं इनको व्यामोह में डालूंगी। मैं स्वयं ऐसी लीला करूंगी जिससे ये मोहित हो जाएंगे। जब ये मुझ पर मोहित होंगे उस काल में जो करणीय है वो आपको कर लेना चाहिए। करणीय है मतलब मारना ही तो लक्ष्य है, लेकिन मार तो नहीं सकते हैं। जब तक उनका परमिशन नहीं होगा दोनों का, तब तक ये मार भी तो नहीं सकते हैं।
लेकिन इशारा कर दिया जो करनी है वो तुम उस समय हे विष्णु कर सकते हो, मैं जब व्यामोह में डालूंगी। अब युद्ध होने लगा और जब प्रबल युद्ध चल रहा था उसी समय माता व्यामोहिका बन करके आ गई। क्या बन के आई? व्यामोहिका। व्यामोहिका का मतलब मोह में डालने वाली, आकर्षक स्त्री का रूप लेकर के आ गई है माँ, लेकिन आकर्षिका स्त्री के रूप में आई, जिसे देख करके ये दोनों युद्ध करना तो छोड़ दिए और उनको ऐसे देखने लगे टुकर टुकर। जब देखने लगे मुग्ध होकर के तो भगवती ने संकेत किया अब जो करना है करो। तब विष्णु ने देखा माँ का संकेत है, मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखो, उनसे कह रहे हैं ददासी परम प्रीतो ददामी परम प्रीतो युद्धेन योयो किल दानवा बहवो दृष्टा युध्यमाना मया पुरा। हे मधु, हे केटव, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूं। मैंने बहुत दानवों के साथ में युद्ध किया है, पर तुम्हारा जीवा में जोया, किसी को भी चढ़ा दो थोड़ा तो कालर ऊंची करने लगता है। हमने तुम्हारे जैसे देखे नहीं है, इसलिए तुम दोनों भाइयों से मैं बहुत प्रसन्न हूं और तुमसे कह रहा हूं तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो मेरे से। भगवान कह रहे हैं विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम हमसे मांग सकते हो। तब वो दोनों भी कम थोड़ी थे, उन्होंने कहा वीक्षमाणो महामायाम जगदानंदकारिणी। माया से मोहित तो थे ही वो भगवती की, इसलिए कह रहे हैं हरे न याचका भावाम त्वम किम दातुमीति मेच्छसि ददाव तुल्यम देवे से दातारो नो न याचकौ। क्या बढ़िया बात बोली है, सुनना इस बात को। तो दोनों मधु कटिप कह रहे हैं हार तुम रहे हो, थक तुम रहे हो, प्रसन्न तुम हो रहे हो हम पर, और देने की भाषा तुम बोल रहे हो कि मांग लो। अरे हम तुमसे कहते हैं बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। क्या बात है। मधु और केटव कह रहे हैं दातारो वयम, हम दोनों भाई दाता हैं, न याचक, हम याचक नहीं है, भिखारी नहीं है, इसलिए मांगना हो तो तुम मांगो हमसे। प्रार्थय त्वम ऋषिकेश मनोविलसितम वरम तुष्टौ तवस्तव युद्धेन वासुदेवाद भूतेन च। तुमने बहुत अच्छा युद्ध किया है वासुदेव हमारे साथ में विष्णु, इसलिए हम तुम पे प्रसन्न हैं। क्या तुम्हारी इच्छा है? मनोविलसित, तुम मांग लो हमसे। मधु केटव ने कहा तयोस्तद वचनम श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दन भवेदा मध्य में तुष्टौ मम मध्यावपि। अगर तुम हम पर बहुत प्रसन्न हो, देखिए भगवती की मोहिनी, अगर तुम दोनों मुझ पर बहुत प्रसन्न हो और मेरे मांगी हुई बात को तुम देना चाहते हो तो मैं मांगू तुमसे, दोगे? बोला हम मिथ्याभाषी नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं, मांग लो तुम्हारी जो इच्छा हो। तब विष्णु ने कहा बहुत विचार करके तुम दोनों मेरी द्वारा किस तरह से मरोगे ये रास्ता बताओ। विष्णु ने क्या मांग लिया? तुम दोनों मेरे द्वारा किस तरह मरोगे ये बतला दो। देखो कथाओं के अंदर कितनी समानता दिख जाती है। कभी कभी मैं जब ये चिंतन कर रहा था तब मुझे भीष्म पितामह याद आ गए।
और भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। 5 बाण निकाल लिए थे पांडवों को मारने के लिए। द्रौपदी को लेकर के कृष्ण पहुंच गए। सवेरे का टाइम था, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। उन्होंने समझा था कि दुर्योधन की पत्नी आई है, और उसी क्षण बोल दिया द्रौपदी ने कि आपकी कौन सी वाणी सत्य होगी, ये जो 5 बाण निकाले मेरे पतियों को मारने के लिए वो सच है, या अभी अभी जो बोला है सौभाग्यवती भव ये सच होने वाला है। आँख खोली पितामह, अरे ये क्या हो गया। युधिष्ठिर और अर्जुन पितामह भीष्म के पास गए, बहुत प्रसन्न थे। पितामह आओ आओ बच्चों, क्या चाहते हो, आप कैसे मरोगे उपाय तो बताओ, क्योंकि इच्छा मृत्यु उनको भी थी। तब देखिए सूरवीर कमाल के लोग होते थे। शिखंडी को मेरे सामने खड़ा कर देना, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, अर्जुन तुम प्रहार कर देना मुझसे। यही स्थिति क्या यहाँ नहीं दिख रही अपने को? भगवान विष्णु कह रहे तुम कैसे मरोगे, रास्ता बताओ। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, 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 हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव, हरि बोल। सूत जी महाराज कहते हैं तच्छ्रुत्वा वचनम विष्णोर दानवो चाति स्मितौ, वंचिताविति मन्वानो तस्थु शोक संयुतौ। हे ऋषियों, दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहते हैं ठग लिए गए हम लोग। दोनों भाई कहते हैं ठग लिए गए हम दोनों लोग, और हमने कह दिया हम तो झूठ नहीं बोलते, मिथ्या नहीं बोलते, इसलिए बात भी माननी पड़ेगी और बताना पड़ेगा। फिर दोनों ने कहा विष्णु थोड़ा टाइम दो विचार करने का, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बताएंगे, लेकिन थोड़ा विचार हमको भी दो, टाइम दो। जो हमने भी दिया था ना तुमको आराम करने का टाइम, तो थोड़ा हमको भी दो। विचार्य मनसा तौ, वो दोनों मन ही मन चिंतन करते हैं और उसके बाद में कहते हैं हाँ ठीक है विष्णु, हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, और हम कहते हैं हाँ कि तुम हमको मार सकोगे, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी पानी है। तुम हमारे मारने के लिए स्थल ढूंढो, भूमि ढूंढो, बिना भूमि के हम नहीं मरेंगे, जमीन के बिना। अपने यहाँ तो जमीन थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने रास्ता निकाला कि चारों तरफ पानी पानी है, तो जमीन लाएगा कहाँ से विष्णु, हमारी मृत्यु कहाँ से होने वाली है। लेकिन उनको पता नहीं था ना कि तुम गुरु हो, तो ये महागुरु है। विष्णु ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जल में नहीं मरना है, स्थल में मरना है, पृथ्वी के ऊपर मरना है ना, अस्तु ऐसा ही हो। हंसते हुए विष्णु ने कहा आओ मैं तुम्हें स्थल दिखाता हूँ, और भगवान विष्णु ने अपनी जंघा का विस्तार किया पानी में ही, और वो जंघा बिल्कुल भूमि की तरह से लग रही है, ये जांघ भूमि की तरह से लग रही है। जितनी बड़ी विष्णु की जंघा थी उससे 100 गुना वो लोग अपना शरीर बढ़ा लिए। अब कैसे उसके ऊपर जंघा के ऊपर
युद्ध होगा। 100 गुना उन्होंने अपना शरीर बढ़ा लिया था माया से, राक्षसी माया से। तो भगवान विष्णु ने भी चमत्कार किया और 1000 गुना अपनी जंघा को चौड़ी कर दिया। आओ और यहाँ सर रखो, ये स्थल है, ये भूमि है। अब तो दोनों विवश हो गए। अगर तुम सत्य वक्ता हो, मैंने मेरी वाणी सत्य करके दिखाई कि भूमि का दर्शन करवाया तुमको, अब तुम भी अपनी वाणी को सत्य करो कि भूमि होगी तो हम मर जाएंगे, तो आओ। उन दोनों भाइयों ने वो जंघा के ऊपर सर रखा। भगवान ने अपना चक्र लिया और दोनों का सर काट दिया। जब दोनों का सर काटा, उन्होंने अपना शरीर बहुत बड़ा कर दिया था पानी में, तो वहां के ऊपर मेद अपने शरीर में मज्जा होती है ना, मज्जा, उसको मेद बोलते हैं संस्कृत में, मांस कह दो। इतना बड़ा शरीर था उनका कि उनकी जो मेद निकली वो चारों तरफ समुद्र में फैल गई और वही पृथ्वी बन गई। इसीलिए एक नाम पृथ्वी का मेदिनी है। पृथ्वी को संस्कृत में कहते हैं ना, पढ़ा है कि नहीं इसका नाम मेदिनी? और इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है मेदिनी की ततो जातम नाम पृथिव्या समन्तत अभक्षा मृत्तिका तेन कारणेन मुनीश्वरा। हे ऋषियों, इसलिए मृत्तिका को अभक्ष्य माना है। मिट्टी खाना नहीं चाहिए, मिट्टी खाई नहीं जाती है, क्योंकि वो मेदिनी है। वो एक राक्षस की मधु और केटव की क्या है, मज्जा है, मेद है, जो पूरी पानी में फैल गई थी। इसीलिए उसको अभक्षणीय स्वीकार किया गया, अभक्षणीय माना गया। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था हे ऋषियों कि किस तरह से विष्णु ने उनको समाप्त किया, मैंने आपको ये कथा सुना दिया है। और इस तरह से पृथ्वी का एक नाम भी बढ़ गया जिसको मेदिनी कहा जाता है। मैं समझता हूँ मेदिनी का अर्थ आज आप लोगों को समझ में आया होगा, क्यों मेदिनी बोलते हैं। मधुकेटव की मेद से वो सागर पट गया था और वही पृथ्वी का भाग बना, इसीलिए इसका नाम मेदिनी हो गया था। अब क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? ऐसा ऋषियों से कहा सूत ने। तो ऋषियों ने कहा कि अब हम सुनना चाहते हैं कि सुखदेव कैसे आए व्यास जी के यहाँ के ऊपर। ये बात मैं परवासा में सुनाऊंगा। आज इतना ही बोलूँगा, क्योंकि एक दूसरा प्रसंग है, उसके विषय में भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मुझे भी करना चाहिए। मेरे आदिवासी भक्त आप हैं, आपके बीच में मेरा 50वां ये संन्यास दीक्षा का दिन मैं चाहता बम्बई में मना सकता था, मैं चाहता हरिद्वार में मेरे महात्माओं के पास जाकर के भी मना सकता था और बड़ा भंडारा भी कर सकता था। वहाँ पर हजारों महात्मा इकट्ठे हो सकते थे। मैंने कहाँ पर मनाया? आप इसी से समझ लीजिए कि तुम्हारे साथ मेरा अटैचमेंट कितना होगा। તમારા સાથેની જે લાગણી છે અને તમારી બી એટલી જ લાગણી છે, એનો જ પ્રભાવ છે કે હું અહીંયા આવીને આ ઝવેરભાઈ નસીબવાળો માણસ ક્યાં છે? ઝવેર દેખાતો નથી। હા, આટલું ઊંચું તમે લોકો મને બેહાડી દો છો ને કે તમે લોકો આમાં મોંડા જ દેખાતા નથી। थोड़ा स्टेज नीचे रखा करो, जिससे कम से कम मैं तुम्हारा मुंह तो देखूं, सुन रहे हो कि सो रहे हो, पता थोड़ी लगता। एक तो ऊंचा चढ़ने में मेरे को तकलीफ, बूढ़ा माने डोहो माणस लाकड़ो लईने चाल्या करूँ छूं। હવે ક્યારેક આવી જાય ને ગુરુદેવો મહેશ્વર તો લાકડું લગાડી આપીશ। ગુરુજીમાં ત્રણેય હોય છે, બ્રહ્માજી બી હોય,
તમે જ ગાઓ છો ને રોજ ગુરુ બ્રહ્મા महेश्वर शा माटे कि शिष्य को ठोकने का। तो आटલું ઊંચું ઊંચું નહીં બનાવતા મહેરબાની કરી, ધનસુખારિતા નહીં બનાવતો આટલું મોટું। અને પેલા પરવાસાવાળા બી આવેલા છે, એ લોકોને બી કહી દેજો થોડા નીચે રાખો। मुझे भक्तों से इतना दूर मत करो, मैं आमने सामने रहना चाहता हूँ। तो शू कह रही हो? तो क्या बोले, क्या बोल रहा था मैं? हाँ ये करेक्ट, અહીંયા જ શું કામ? કારણ કે તમારા સાથેની લાગણી નાનપણથી તમારા સામે જ મોટો થયો છું, અને ગુરુદેવની આજ્ઞા પણ હતી, આદિવાસીઓનો હાથ છોડીશ માં। મેં કહ્યું બધું છોડીને જંગલમાં બેસી જઈશ, પણ એ લોકોનો હાથ છોડીશ નહીં, તો હું મારો વચન પૂરો કરી દઈશ। તમે છોડી છોડીને શહેરોમાં જાઓ છો ને વસો છો। મારા ભરુમાળવાળા ઘણા બધા ધરમપુર ને બલહારમાં જઈને બસી ગયા છે। હું એ લોકોને કહું છું દીકરાઓ તમારા માટે આવ્યો અને તમે મને છોડીને વલસાડમાં વયા ગયા। હા, શહેરોમાં ભાગે છે બધા। હું શહેર છોડીને ગામડામાં આવ્યો। ये महेश भाई कोठारी यहाँ बैठे हैं, देखो अपने ट्रस्टी तो थे ही और हैं, लेकिन मेरा बेटा है, बहुत प्यार करता है मुझे। एक दिन मेरे को बोलता है जब मैं बरुआल में आके रहने लगा, हाँ તમને હું થયું? આટલું સારું નાસિકનું કૈલાસ પર છોડીને અહીંયા ક્યાં આવીને બેસી ગયા છો તમે? मैंने कहा कुछ तो कारण होगा, प्रभु का कुछ तो संकेत है। अब नहीं पूछता है, पहले तो बहुत 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 पूछा करा, बहुत पूछा करता था, ये क्यों, ऐसा क्यों। हमें तो बड़ा प्रश्न उठता। याद रखो बच्चों, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। आपकी प्रीति कारण थी, इसीलिए विद्यानंद रूप कार्य यहाँ हो गया। आपकी प्रीति प्रगाढ़ थी, इसलिए यहाँ पर महादेव भाव भावेश्वर के रूप में आकर के विराजमान हो गए और श्री सद्गुरु धाम की स्थापना हो गई। इसमें आपकी प्रीति, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण और उसी भाव के कारण से आज ये 50वां वर्ष मैं आप सबके साथ में गुजारने के लिए, मनाने के लिए आ गया। संन्यास दीक्षा, संन्यास का अर्थ ही होता है बच्चों सत्कर्मणाम न्यासः संन्यासः, कर्म मात्र का त्याग, उसका नाम संन्यास। क्रियाकांड का त्याग, उसका नाम संन्यास। अब आप कहेंगे क्रियाकांड का त्याग कहाँ हुआ है? जब तो आप नवचंडी करवा रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करवा रहे हैं, ये कर्मकांड नहीं है तो और क्या है? फिर त्याग कहाँ हुआ? अब तुम जो शब्द बोल रहे हो उस पर ध्यान दो। करवा रहे हैं, क्या है? कर नहीं रहे। क्या शब्द है? करवा रहे हैं। और ये करवा क्यों रहे हैं? अगर हम लोग इन सब चीजों को नहीं करवाएंगे तो तुम्हारे में सनातन संस्कृति के संस्कार कहाँ से आएंगे? तुम उपासना कहाँ से कर पाओगे? ये तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ। इससे लाभ आज यहाँ जवेर भाई के यहाँ नवचंडी माता जी पधारी हैं और हुआ है, तो ये लाभ इनको होगा, इस गांव को होगा, आसपास के वातावरण को होगा। विद्यानंद तो भी उठ के चले जाएगा,
आया भी पूर्णाहुति के टाइम था और अभी उठ के चले भी जाएगा। बाकी जो माल बचेगा उसको कौन खाओगे? बोलो। जे लोग कोई कर्म करू चाहिए, जो लोग को खासे एक यज्ञ 25 योजन तक के वातावरण को शुद्ध करता है नवचंडी। 25 योजन का मतलब हो गया बेटा 4 गुना कर दो तो 100 माइल, इतने एरिया को पवित्र करता है। सतचंडी के लिए कहा जाता है 100 योजन। सहस्त्र चंडी 1000 योजन तक के वातावरण को पवित्र करती है और लक्ष्य चंडी तो 1,00,000 योजन तक के वातावरण को पवित्र करती है। इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है उसमें। इसलिए आप सबसे करवा रहा हूं जिससे यहाँ का वातावरण शुद्ध हो, वातावरण पवित्र बने। आपके आम के वृक्षों के अंदर आम के फल लगे, केमिकल की धुआं जो छूट रही है उससे आपके वृक्ष बचे, पर्यावरण की रक्षा हो। इसलिए यज्ञ की धुआं बहुत आवश्यक होती है। तो नारायण सत्कर्मणाम न्यासः संन्यासः है। और हमारे लिए तो यहाँ तक कहा जाता है रुदंतम मातृन पितृन भ्रातृन बंधून स्वजनान परित्यक्त्वा सर्वत्र व्रजति इति परिव्राट सन्यासी। रोते हुए माता पिता भाई बहन सगे संबंधी संपत्ति इन सब का अटैचमेंट उसे प्रभावित न कर सके और छोड़ के निकल जाए, उसका नाम सन्यासी होता है। मेरी मात्र उम्र उस समय 21 साल और 6 महीने की रही होगी और उस समय गुरुदेव ने मुझे संन्यास दीक्षा दिया था। आज ही के दिन वसंत पंचमी के दिन मैं गुरुदेव का बहुत उपकार मानता हूँ। उन्होंने मुझे बचा लिया इस संसार की आग से। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए निकल पड़े थे। सामने से महाराज यदु आ गए और उन्होंने मस्त राम फकीर दत्तात्रेय को देखा। प्रश्न करते हैं पहला, संसार जल रहा है, आग लगी हुई है और हे मस्त फकीर तुम निर्द्वंद होकर के विचरण कर रहे हो, आखिर ऐसी कौन सी दवा पी ली है तुमने जिसके ऊपर ये प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है आग का? तब दत्तात्रेय ने बहुत अच्छी बात की थी यदु से। वैराग्य एकमात्र ऐसी वस्तु है जब जिस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर जाता है सारी अग्नियां शांत हो जाती है, सारी अग्नियां शांत हो जाती। मुश्किल तो यही है ना, वैराग होता कहाँ है? तुमको होता है ना ईश्वर? थोड़ी देर के लिए होता है और कभी कभी तो ऐसा वैराग होता है कि मेरे से ही वैराग हो जाता है, आना ही छूट जाता है, दिखता ही नहीं मेरा बेटा। आजकल दिख रहा है, इसका मतलब घर से थोड़ा वैराग लग रहा है। तो एक दाखला दिया तुमको, तुम सबको वैराग होता है लेकिन तुम्हारा वैराग कहाँ तक? स्मशान तक। तुम्हारा वैराग्य कहाँ तक है? जिसको हम स्मशानिया वैराग बोलते हैं। जब किसी को जाते हो जलाने के लिए फिनरल के प्रोग्राम में और कोई जल रहा होता है, कोई रो रहा होता है, देख रहे होते हो आप लोग उसको, तब कहते हैं देखो बेचारा गया नहीं। यही तो दुनिया है।
आनंद फानन की दुनिया है, आने जाने की दुनिया। एक दिन अपने भी શું છે આ સંસારમાં? કાંઈ છે નહીં ભાઈ, કાંઈ છે નહીં. ત્યારે તો આટલો મોટો વૈરાગ આવશે, બાપરે બાપ. અને એમ લાગશે કે ગુલાબભાઈ તત્કાલ નાની ડોલરી છોડીને મારા પાસે જ આવી જશે. પણ દીકરો આટલી કથાઓ સાંભળી લીધી પણ હજુ સુધી તો પહોંચ્યો નથી. શું થાય છે? વૈરાગ તો આવે છે તમને, પણ જ્યારે તમે બાથરૂમમાં નાહો છો ને સાબુથી, બધું વૈરાગ બાથરૂમમાં જ વયો જાય છે, ધોવાઈ જાય છે ત્યાં. પછી જેવા હતા તેવા થઈ ગયા. હવે થોડી આશા જાગે છે મને દીપકભાઈ નવેરાવાળાથી કે ચાલો જુવાન છે, હજુ ડોહો નથી થયો, કાંઈક સેવા કરશે, આવશે સાંભળીને વૈરાગ આવશે. પણ લાગતું તો નથી એને બી જોઈને. હું એક એકનું નામ લઈને બોલું છું કે અરે હવે તો સુધરો, હવે તો તમે તમારા ગુરુના ચરણો ઉપર ચાલો, પગલા ઉપર ચાલો. बहुत गई थोड़ी रही. પછી શું થશે? પછી કઈ રહેશે? મીંડો. संभलिए. आप सोचिए आपका ये गुरु जो बैठा हुआ है सामने, ये जब 12 वर्ष का था तब घर छोड़ के निकला था. मुझे 60 साल हो गए घर छोड़ के, और संन्यास लेके 50 साल हो गए. આ બધું જાણો છો ને તમે, ખબર ને, તો બી મન થાય છે કે આપણે બી ગુરુના ડગલે ને પગલે ચાલીએ. જ્યારે તમે તો બધું ભોગી છૂટ્યા છો તો પણ ઘર છૂટતો નથી. एक महात्मा जी के पास एक आदमी आया और जोर जोर से चिल्ला के बोलने लगा, महाराज छूटतो नहीं. महाराज तो बोला, महाराज की तो महाराज तो छूटेला જ. महाराज क्या छूटतो નથી? बोला नहीं महाराज ही નથી छूटतो. बोला શું નથી छूटतो? સંસાર. કેમ? બહુ પકડીને રાખેલું છે સંસારે, મને પકડી રાખેલું છે, નથી છૂટતું. તમે કઈ ઉપાય કહો. તો ઠીક છે, આવતીકાલે સવારે આવજો. બીજા દિવસે સવારે પેલો ભાઈ ગયો તો મહાત્માજી એક ઝાડને એમ વળગીને ઊભા હતા જોરથી. હવે પેલો ભાઈ આવ્યો, મેં આવી ગયો છું, હું આવી ગયો છું, હવે તમે કયો. બોલા ક્યાંથી કયો? આ ઝાડ મને છોડતો, આ ઝાડ મને, હું ક્યાંથી કયો? તો પેલો ગાંડા થઈ ગયા છો મહાત્માજી. તમે પકડીને આને રાખેલું છે અને કહો છો કે ઝાડે પકડ્યું છે તમને. મારા દીકરા આ જ ઉત્તર છે, આ જ ઉત્તર. પકડીને તું રાખેલું છે સંસારને, સંસાર તને પકડીને રાખેલો નથી. छोड़वानी जरूरत तने है। इसलिए विचार कीजिए, आप जिस गुरु की संन्यास जयंती मनाने के लिए बैठे हुए हो, उस गुरु का कुछ तो अनुसरण करने की बात सोचिए. कितने वर्षों से हमारे बीच में बैठा हुआ महात्मा हमें प्रेरणा कर रहा है. त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप. हे परंतप, आ संसारनी वासनाने त्याजीने उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी. ये सूर्य प्रकाश को बहुत समझाता था मैं, अरे नालायक छोड़ दे, कहाँ जाता है साला. ऐसा गया मेरे को पता ही नहीं लगने दिया, 4 पैर का होके गया. बहुत बचाने की कोशिश की थी मैंने. आपको खुशी होगी एक बात जान करके. एक बच्चा मेरे पास आया, आज सवेरे मेरे पास आया,
साष्टांग प्रणाम किया मुझे, लाल फूल लेके आया। आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। आपकी और मेरी प्रीति हमेशा अक्षुण्ण बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मैं आपके पगले पर ही चलता रहूँ, आपका अनुकरण करूँ। बस मुझे संसार में नहीं जाना है। और उसके माता पिता दोनों यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने। कहाँ गया पिंगला में? ये इधर। तू भी खड़ा हो जा शांतु, तुमने बड़ा दान किया, बहुत बड़ी बात है। तू भी खड़ी हो जा। क्या मीनू, क्या भारती, सरस्वती भारती पूरी, यहाँ भारती। इन दोनों ने ये लड़का समर्पित किया। इन्होंने भले किया होता, लेकिन इसमें नहीं होता तो ये बालक सवेरे सवेरे आके मुझसे कहता है, आज आपकी संन्यास जयंती, बहुत बड़ा आपके जीवन का दिन है और मैं आज आपको प्रणाम करने के लिए रहता मेरे पास है, लेकिन सवेरे सवेरे आ गया। क्या तुम्हारे में ये ताकत नहीं है? किसी में तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है? क्या तुम उनमें संस्कार नहीं डाल सकते हो? अरे मैं जिस दिन यहाँ आया था रहने के लिए मरुमाल में, मैंने कहा था मेरे आदिवासी भक्तों को कि तुम मुझे अपने बच्चे भी दो, हो सकता है कोई तुम्हारे में से ही ऐसा निकले जो मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना के चले जाऊं, लेकिन कोई नहीं आया। आवे तो गुलाब, तू आवे तो भी तेने उत्तराधिकारी तो नहीं बनाओगे, दो देगी तू हूँ कर ले वाला। अरे तो पूરું થઈ ગયું। हाँ, दीपक માટે થોડોક વિચાર કરી શકો છો। એ તો હાથ જ જોડે દૂરથી જ આવવા લાગે। હજુ એનું સંસારથી પેટ ભરાયેલું નથી। અને ઉજવવા માટે શું બેસેલા છો તમે? સંન્યાસ જયંતિ। કોની? પેલા ગુરુજીની। હા, તો ગુરુજી લે ને સંન્યાસ, આપણે શું લેવા દેવા, હે ને? कुछ तो समझिए, कुछ तो सीखिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने गुरुदेव का, मज़े की बात है कि मेरे सामने बैठा है, जिसने भी लगाया है यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ से बैठे बैठे डायरेक्ट शक्तिपात कर रहे हैं। देखो आप, उनका हाथ देखो मेरी तरफ, मैं ऊपर देख। बिल्कुल व्यासपीठ के ऊपर उनकी दृष्टि है और उनका हाथ मेरी तरफ हो रहा है। हे गुरुदेव, आपकी बहुत बहुत कृपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको त्याग और वैराग्य की शिक्षा देते हुए आप भी अनुसरण कीजिए, अनुकरण कीजिए, आपका भला ही होगा। ओम शांति शांति शांति।